Dear students, today we are going to understand or explain a famous poem, My Good Right Hands, composed by C. Mackay, Charles Mackay. ये कविता कक्षा 10 के कंपल्सरी इंग्लिश के सिलेबस में है। कविता को दो भागों में बांटकर हम पढ़ रहे हैं। एज इट इज लॉन्ग, कविता लंबी होने के कारण हम इसको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द पोएम इन टू पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट वी विल टेक स्टैंजा फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इन second part we will take third and fourth stanza. Charles Mackay was a great poet. He composed many poems, and My Good Right Hand is one of them. In the beginning, the poet explained about his poor condition and the behavior of his false friends and relatives. कविता की शुरुआत का बैकग्राउंड ऐसा है, इन ओल्ड डेज या प्रीवियसली द पोएट वाज वेरी रिच पर्सन and he was always surrounded with his friends and relatives because he spent them money, he spent on them money, वो उन पर धन खर्च करता था because he was wealthy and he was always surrounded his friends and relatives, and by he became poor, so his condition become worst. He has nothing now and he began to suffer. So he remembers his friends and relatives who were always with him in good days. Now the condition of the poet is very poor, and in the opening stanza of the poem the poet describes about his poor condition and the behavior of his false friends and relatives. तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं गरीब हो गया हूं तो कोई बात नहीं, आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू हेल्प मी। मेरे पास में बहुत सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स हैं जो मुझे ऐड करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे। बट दिस आइडिया वाज इन वैन। तो देखिए हम लाइन टू लाइन इस कविता को पढ़ रहे हैं। चार्ल्स मैके ने किस तरह से इस कविता को लिखा है। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई फेल इनटू ग्रीफ अर्थात ग्रीफ का मतलब संकट या दुख या कष्ट होते हैं। जब मैं कष्टों में था, बिकॉज व्हेन ही बिकम ए पुअर पर्सन हिज कंडीशन बिकम वर्स एंड बिगेन टू कंप्लेन, तो वो अपने आप में शिकायत करने लगा। It was in his mind that he has a number of friends and relatives. They will help me in my poor condition. तो उनकी तलाश के लिए वो निकला, लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ। He felt grief, और वो अपने आप से शिकायत करने लगा। I look for friends. तो कंडीशन खराब होने के कारण I look for the friends, मैंने उन मित्रों को लुक किया, तलाश किया। अर्थात when he become poor, he goes to his friends for the help, मदद के लिए वो अपने मित्रों के पास गया। लेकिन यहाँ बट शब्द आ गया, इसका अर्थ है कि friends did not help him, मित्रों ने उसकी कोई मदद नहीं की। But I sought him in vain, लेकिन कैसा पाया उनको? In vain, बेकार। This idea was not true, जो वो सोच रहा था कि मित्र मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे, तो it was in vain. This idea was false.
they proved false. They did not help the poor poet. वो गरीबी में उस कवि की कोई मदद नहीं करते हैं. I looked for friend, but I sought in vain. The poet goes to his friends for the help, but they do not help him. वो उनकी मदद नहीं करते हैं. Companions were shy. Companions का अर्थ होता है मित्र. Were shy. वो शर्मा रहे थे. They tried to avoid him. वो मित्र जो उसके साथ हमेशा रहते थे वो अब शर्मा रहे थे. They were shy. They want to move from him. They want to look aside. वो दूसरे देख रहे थे. अर्थात they were not in the position. They were not in the mood to help the poet. Companions were shy and acquaintances were cold. Acquaintances का अर्थ होता है कि बहुत घनिष्ठ मित्र नहीं लेकिन फिर भी मित्र. They were cold. Cold का अर्थ क्या है? ठंडे होना. अर्थात वो भी कोई मदद नहीं कर रहे थे. They did not help him warmly. वो गर्मजोशी से उसकी मदद करना नहीं चाहते थे. Their relations were very cold. They did not take any notice. The acquaintances were cold. अर्थात neither his relatives nor his friends ready to help him. तो उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की. They give me good counsel. They here stand for companions and acquaintances. They का अर्थ यहाँ रिश्तेदार और मित्रों के लिए है. They gave me good counsels. Counsels का मतलब होता है एडवाइस. हालांकि उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी. They speak only with lips. They help. Lips help. अर्थात ज़बानी मदद. They help him lips. Lips help तो उन्होंने की. Counsel दी, एडवाइस दी. They give me good counsels. They give me good advices. ऐसा कर लो यार, ऐसा कर लो. Do like this and do like that. They only advise me. But dreaded their gold. Dreaded का मतलब डरना. They dreaded their gold. अपना सोना देने में वो dread मतलब घबरा रहे थे. अर्थात they were giving only counsels and advice. They were not ready to give him help by money. वो धन दौलत जो गरीबी में उसके काम आता वो देने के लिए तैयार नहीं थे. They were not ready to give him help by money, but they were only giving him advices, lip helps. जबानी जो था वो उनको मदद कर रहे थे, लेकिन कोई भी इकोनॉमिकल मदद करने के लिए वो तैयार नहीं थे. They were not ready to help him economically, only they were advising him, lip helps दे रहे थे. तो देखिए, in the first stanza of the poem we came to know that poet was in old age was very rich and he was surrounded with his selfish friends and relatives, and by he become poor. Then he thought that he had a lot of friends and he went to them for the help, but they made him despair. उन्होंने उसको निराश किया. They did not help him. They only advised him. They were afraid of giving him money. वो उसको धन दौलत देने में घबरा रहे थे. तो ये था कि मित्रों पर हम इसका मतलब है we should not depend on the friends and relatives. हमें मित्रों पर और रिश्तेदारों पर ज़्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए. In the second stanza, poet के दिमाग में था कि मैं अपने मित्रों से मदद ले पाऊंगा, लेकिन वो प्रूव गलत हुई. The friends and relatives proved false. तो दूसरा स्टेंजा जो शुरू करता है तो उसमें कवि के दिमाग में थोड़ा एंगर आता है, गुस्सा आता है, और वो उन मित्रों को फटकारता है एक तरह से, और उन पर विश्वास करने की जो दिमाग में बात थी वो चेंज कर देता है. He changed his idea about his relatives and friends कि वो कोई मदद करने वाले नहीं हैं. तो फिर कहता let them go. Them here for stand for companions and relatives. Let them go. जाने दो, छोड़ो इनको. Leave them. I exclaimed. मैंने ऐसा सोचा. I exclaimed myself. I have a friend at my side. और उन्होंने कहा
कि द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रूव्ड फॉल्स, बट ऑन द अदर हैंड आई आल्सो हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। मेरा एक और मित्र है। आई हैव ए फ्रेंड मोर, मेरा एक और मित्र है। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड टू हेल्प मी। टू लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब उभारना, एंड एड का मतलब मुझ देना। अर्थात कवि कहता है, द पोएट सेज हियर कि लेट दी फॉल्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गो, उनको जाने दो। द पोएट हैज अनदर फ्रेंड दैट विल लिफ्ट हिम एंड एड हिम, वो उसको मदद करेगा, उसको ऊपर उठाएगा। अर्थात दिस फ्रेंड विल हेल्प हिम इन पुअर कंडीशन, he will lift him and he will add him, he will give him something whatever betide, जो कुछ उसको चाहिए, whatsoever may, in all the condition, betide का मतलब in all condition, whatever betide in all conditions। अर्थात the poet has one more friends, he will help him in all conditions, he will give him money, he will give him what he need। अर्थात वाट एवर बिटाइड, जो कुछ मुझे आवश्यकता होगी वो मुझे ये मेरा मित्र देगा। दिस माई फ्रेंड विल गिव मी एवरीथिंग, आई हैव ए फ्रेंड आल्सो, लेट दी फॉल्स फ्रेंड्स गो। टू ट्रस्ट टू दी वर्ड इज टू बिल्ड ऑन दी सैंड। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, ट्रू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू दी वर्ड, इस संसार को में विश्वास करना, अर्थात संसार के लोगों पर विश्वास करना, आज के लोगों पर इस तरह से विश्वास करना। टू बिलीव ऑन दी वर्ड, वर्ड का मतलब पीपल ऑफ दी वर्ड, संसार के लोगों में विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन दिस, इज टू बिल्ड, बनाने के समान है एक मिट्टी का किला। अर्थात इन लोगों पर विश्वास करने का मतलब है कि मिट्टी पर किला बनाना। मिट्टी पर किला बनाने का मतलब एफर्ट विदाउट फाउंडेशन। अगर किसी मकान को हम बिना फाउंडेशन बनाते हैं तो उसकी कोई लंबी लाइफ नहीं होती है, अर्थात वो जल्दी धराशायी हो जाता है। तो इन दी सेम वे, इफ वी बिलीव ऑन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट वी आर बिल्डिंग ए फोर्ट ऑन द सैंड विदाउट फाउंडेशन। बिना हम किसी फाउंडेशन के हम कोई महल बना रहे हैं तो वो महल कितना चलेगा। अर्थात आज के लोगों पर विश्वास करना वैसा ही है जैसा कि बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के हम कोई बड़ा महल बनाते हैं और उसका जो जीवन होता है, उसकी जो लाइफ होती है, उसका जो कैरियर होता है, वैसा हमारे मित्रों का है। अर्थात वी शुड नॉट बिलीव ऑन द वर्ड, ऑन द फॉल्स फ्रेंड्स। इट इज जस्ट लाइक जस्ट वी बिल्ड ए फोर्ट और पैलेस ऑन सैंड विदाउट एनी फाउंडेशन। अर्थात बिना नींव के अगर हम कोई महल बनाते हैं तो जैसा वो होता है वैसे ही आज के लोगों पर विश्वास करना उसके समान है। अर्थात उसका कोई लाइफ नहीं होती है बिना नींव के महल की, उसी तरह से आज के लोगों की भी कोई ट्रस्ट नहीं है, उनका कोई फाउंडेशन नहीं है, वो किधर से किधर हो सकते हैं। जब अच्छे दिन थे तो वो हमेशा मित्र के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में कवि के साथ रहते थे, लेकिन जो ही उसके दिन बदले वो सब उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तो कहा कि मैं इन लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ जो आज के लोग हैं। द पीपल हु डिसीव्ड मी, आई विल नॉट बिलीव ऑन देम, इट इज जस्ट लाइक ए बिल्ड ऑन द सैंड। आई विल ट्रस्ट, आई विल ट्रस्ट, कहा मैं विश्वास करूंगा, लेकिन मेरे मित्रों पर, मेरे झूठे मित्रों पर और रिश्तेदारों पर नहीं। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, हेवन मीन्स गॉड, हेवन मीन्स गॉड। मैं किस पर विश्वास करूंगा? आई विल ट्रस्ट इन हेवन, मेरे ईश्वर पर। एट माई गुड राइट हैंड, और मेरे राइट हैंड पर। राइट हैंड का अर्थ है यहाँ कार्य पर, वर्क पर, अपने काम पर। अर्थात द अदर फ्रेंड इज हिज हैंड, राइट हैंड, उसका दाहिना हाथ, जिसको वो काम करेगा उससे। he will work with his right hand and the conditions will improve, अर्थात वो अपने मेहनत करेगा। राइट हैंड का अर्थ है यहाँ मेहनत करना, अपने हाथों से मेहनत करना। तो किस पर विश्वास करेगा कवि? The poet believes only on God and his right hand means his work,
जो खुद काम करेगा उस पर विश्वास करेगा, एंड ही विल नॉट बिलीव ऑन द फॉल्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो देखिए, इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट बिकेम एंग्री विद द पर्सन हु डिसीव्ड हिम, एंड एट सम टाइम्स बिफोर दे वर ऑलवेज कम टू हिम, जो उनके पास आते जाते थे, लेकिन अब दे अवॉइड हिम बिकॉज द कंडीशन ऑफ द पुअर बिकम पुअर, सो दे लेफ्ट हिम, चले गए सब। तो अब कवि कहता है कि मुझे ऐसे मित्रों की आवश्यकता नहीं है, लेट देम गो, मुझे ऐसे मित्रों की आवश्यकता नहीं है जो धोखा देते हैं। और कहा कि टू लिफ्ट मी एंड एड मी व्हाट एवर बिटाइड, अर्थात मेरे पास में एक और मित्र है, दैट इज हिज वर्क, दैट हिज वर्क सिंसियरली, उसका राइट हैंड मीन्स हिज वर्क, मेहनत करेगा वो और अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ेगा। और अगर मित्रों पर हम विश्वास करेंगे, ऐसे लोगों पर, तो इसका अर्थ है कि जैसे कि हम एक ही मिट्टी पर महल बना रहे हैं, जिसका कोई जीवन नहीं होता है मिट्टी के महल का, वैसा ही आज के लोगों की मित्रता है। उसको अपनी मित्रता को मिट्टी के महल पर, बिना फाउंडेशन के महल से कंपेयर किया है। और आई विल ट्रस्ट बट इन हेवंस, दो द पोएट विल ट्रस्ट not on his false friends, but he will trust on God and his right hand. His right hand means his work. So only he will believe only God and his work, and by working hard he will improve. He will get everything what he need. Thanks. तो देखिए, मैंने आपको ये कविता हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे। इससे आगे वाला भाग जो है, स्टेंजा 3rd and 4th आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं सोचता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स।